हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर है बिजनेस लॉस का, उसका चैप्टर नंबर 4 द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स है वो पहले पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एलिजिबिलिटी टू बी ए पार्टनर, सेक्शन 22 क्या कहता है इस एक्ट का? ऑन द कॉरपोरेशन incorporation of a LLP, the persons who subscribed their name to the incorporation document shall be its partner, and any other person may become a partner of the LLP by in accordance with the LLP agreement. Relationship of partners under section 23 क्या कहता है? The mutual rights and duties of the partners of a LLP shall be governed by the LLP agreement. The LLP agreement, any change in the any made if any made therein shall be filed with the registrar in the prescribed form and fees. An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their name to the incorporation document may impose obligation on the LLP. ठीक है गाइस, चलिए अब इसका फोर्थ पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टर्स एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द LLP एंड द पार्टर शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द प्रोविजंस रिलेटिंग टू दैट मैटर एज आर सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ठीक है जी, उसके बाद है सीएशन ऑफ द पार्टर्स इंटरेस्ट। ठीक है, वो कैसे होगा, उसका सीज कैसे होगा इंटरेस्ट? सेक्शन 24 में, बाय गिविंग नोटिस ऑन डेथ डिसोल्यूशन ऑफ द LLP declared to be an unsound mind, insolvent, notice that former partner has ceased to be a partner of the LLP हैज़ बिन डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। ठीक है जी, इस तरीके से वो पार्टर सीज करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टर, सेक्शन 25, एवरी पार्टर shall inform the LLP of any change in his name address within a period of 15 days of each change. A LLP shall file notice within 30 days, 30 दिन के अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद है इसका इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फीस। ओके जी, चलिए उसके बाद एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर्स। इस केस में क्या है गाइज, पार्टनर एज एन एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ ए LLP for the purpose of the business of the LLP, the agent of the LLP, but not to the others partners. Extent of liability of LLP क्या है? section 27, LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the partner has no authority. दूसरा, if the person believes him to be a partner of the LLP. और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, द LLP इज लाइबल इफ द पार्टनर ऑफ LLP इज लाइबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द रॉन्ग एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट in the course of business of the LLP. Any obligation of LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP. The liabilities of the LLP shall be met out of the property of the LLP. राइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर क्या है? सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन। दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। होल्डिंग आउट, सेक्शन 29, एनी पर्सन who by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented to a partner in a LLP is liable to any person who has on the faith of any such representation given credit to the LLP, whether the person represents himself as or represented to be partner doesn't know that the representation has reached the person so giving credit. ठीक है गाइस, उसके बाद क्या है, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड इन द सेम LLP नेम, द कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ द दैट नेम और ए पार्ट ऑफ देयर ऑफ shall not of itself make his legal representation or his estate liable for any act of the LLP done after his death. आगे हम डिस्कस करेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड कैसे रहेगी सेक्शन 30 के अंदर।
In case of fraud, in the event of an act carried out by an LLP or any of its partner with intent to be defraud creditors of the LLP, shall be unlimited for an all or any of the debt or other liabilities of the LLP, shall be punishable for imprisonment up for a period of up to extent of 2 years with a fine of not less than 50,000 up to रुपीज 5 लाख। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका क्या है, वेयर एज एन एम्प्लॉई कंडक्ट अ फ्रॉड द डेजिग्नेटेड पार्टनर or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। एंड उसके बाद विसल ब्लोइंग सेक्शन 31 क्या कहता है, द कोर्ट ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लीवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द LLP इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ LLP हैज प्रोवाइडेड useful information during the investigation of the such LLP। When any information given by any partner or employee leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under this act or any of the other act। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, नो पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed or in any other manner discriminated against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स क्या है इसके, द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट एटसेट्रा। सेक्शन 34 क्या कहता है इस बारे में, आइए डिस्कस करते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले LLP शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। दूसरा, रिलेटिंग टू इट्स अफेयर ऑफ ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तीसरा, ऑन सच कैश ऑन कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डेंस टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। और उसके बाद है, फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एवरी LLP शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर prepare a statement of account and solvency and for the said period financial year as the last day of the said financial year in such a form as may be prescribed। Such agreement shall be signed by the designated partners of the LLP। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एवरी LLP शैल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड द सॉल्वेंसी विद द रजिस्ट्रार एज द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद फीस। ओके उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द अकाउंट ऑफ LLP शैल बी ऑडिटेड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स। Any LLP which fails to comply with the provisions of this section shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to rupees 5 lakh। Every designated partner of such LLP shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to rupees 1 lakh। ठीक है। एनुअल रिटर्न, एवरी LLP शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड accompanied by such fees as may be prescribed। Any LLP shall fail which fails to comply with the provisions of this section shall be punishable with fine which shall not be less than rupees 25,000 but which may extend to rupees 1 lakh। ओके जी। उसके बाद हम यहां बात करेंगे, इफ द LLP कंट्रावीन्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच LLP शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन रुपीज 10,000 बट विच मे एक्सटेंड टू रुपीज 1 lakh। राइट हो। उसके बाद है कन्वर्जन इनटू LLP, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू LLP सेक्शन 55 अंडर कवर होता है। कन्वर्जन इनटू और फ्रॉम प्राइवेट कंपनी से LLP सेक्शन 56 के अंडर कवर होता है। कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से किसमें कन्वर्ट होता है, सेक्शन 57 में LLP में कन्वर्ट करने के लिए। राइट गाइस। तो रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन क्या है, वो आएंगे सेक्शन 58 में। ठीक है। सेक्शन 55, सेक्शन 56, 57 एंड 58। राइट गाइस, समझ लग गया ना ये पॉइंट आपको।
चलिए, अब फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, फॉरेन एलएलपी जिसको बोलते हैं। सेक्शन 59 क्या कहता है इसके बारे में? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस in relation to the establishment of place of business of the foreign LLP within India and carrying on its business therein by applying or incorporating such modification as appear appropriate the provisions of the Companies Act। ठीक है जी। उसके बाद 10th पॉइंट क्या? वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप सेक्शन 64 क्या कहता है? इफ द एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल if for a period of more than 6 months the number of partners of LLP be reduced below 2, if the LLP is unable to pay off its debt, if the LLP acted against the integrity of the India, if the LLP default in filing with the registrar the statement of account and solvency on or annual returns, and if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable to wound up the LLP। और अब हम मिसलिनियस पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ ए पार्टनर विद LLP सेक्शन 66। गाइज वो कहता है कि अ पार्टनर मे लैंड मनी टू एंड ट्रांजैक्ट अदर बिजनेस विद LLP एंड हैज द सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन with respect to the loan or other transaction of a person who is not a partner, okay guys। उसके बाद application of the provision of the Companies Act section 67, the central government may by notification in the official gazette direct that any of the provision of the Companies Act shall apply to a LLP। A copy of every notification proposed shall be laid in draft before each house of the parliament while it is in session। और उसके बाद ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कैसी होगी? सेक्शन 68 के अंडर एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मे बी फाइल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड एज द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। A copy of any document electronically filed with the registrar which is supplied and certified through affixing digital signature as per IT Act 2000। राइट गाइज, तो इसी के साथ ये एक्ट का सारा पोर्शन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। गाइज मैंने आपको बताया था कि LLP एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो अगली वीडियो से मैं अमेंडमेंट्स भी डालूंगा। ये ओरिजिनल एक्ट तो एक बार आपको करवाना ही था ना, क्योंकि ये बेस तो हमारे लिए यही है। अब उसकी अमेंडमेंट्स मैं अगली वीडियोज़ में आपको करवाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए। ओके जी, डन।